So guys, let's start with syllogism. We'll talk about statements first and their respective diagram and the policy and the method through which we take the syllogism further. Statement 1 is all x are y. So for the statement all x are y, there is only one single diagram, and that diagram is this. Correct. So whenever a statement is given as a statement, then I will make such a diagram and work on it and try to reach to the conclusion. Second one is no x is y. So no x is y, the diagram should be this, or rather not writing anything in between. This sign in between is basically for that there is no intersection possible in the various possible diagrams of the whenever you will take the different variations, so it will not be possible. So this is just to ensure this. Third one is some x are y. So whenever some x are y as given as a statement to us, whenever some x or y is given as a statement to us, the one possible diagram is this. This is the diagram we will usually make, correct? So this is one thing, right? But in this case, some can also go to the extent. There's a small note that you need to write down somewhere. Note is that this sum x can go to the extent of all. Similarly, some x or y is same as some y or x. So similarly, some y can also go to the extent of all y, right? Question number 4. So guys, keep remember this point because this will be so critical in certain questions. The last one is some x are not y. Some x are not y. Just a minute, guys. So some x are not y. This is the last statement that we need to take care of. Just a minute, guys. Okay. Some x are not y. In this particular case, there will be two diagrams that we need to start with. One is this. Some x are not y implies one version of this is that some x are not y. One diagram possible is this. The other possible diagram is this. Okay. The other possible diagram is this. So these are the two possible diagrams. Okay. I hope you have noted down. Next one is what about conclusions? The conclusions are the one which are 100% time true. The first definition of conclusions is, so it needs to be if a statement is written as a conclusion, or if you want to prove it as a conclusion, then it needs to be 100% time true. Correct, guys? So 100% time it needs to be true. So the best way, we'll talk about the strategy how to deal with the conclusions, but you remember this definition of conclusion. So even if it is found one time that it is false, that is good enough to discard this as a conclusion. Okay, so that's one definition. So I think that should be good enough. So now they can ask me anything in conclusion. So I hope you are done with this statement part. Now let's talk about
how to deal with syllogism. That's the most critical part of syllogism, where the most of the people confuse you also. So syllogism strategy. Syllogism strategy will have 80% questions and 20% questions. In 80% questions, I can easily handle. The first strategy is single most strict diagram. Single most strict diagram. So I want to finish off my 80% of the questions with one diagram, and that's the strict diagram. So what do I mean by strict? I will explain it further. So that's one thing of syllogism. Second thing of the 80% question is that what about the rest 20% of the questions? Where is the problem? The problem exists in either, and the problem exists in some X R, not Y, as statement. As statement. As statement. Right. One thing, conclusions में एक बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर. Conclusion is one thing which is 100% time true. Correct, guys? So the best strategy for conclusions is that you negate the conclusion. अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, हर कंक्लूजन को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं. उनको सही प्रूव करने की बजाय उसको गलत प्रूव करना चाहिए. क्यों? गलत प्रूव करना ज्यादा आसान है. सपोजिटली अगर कंक्लूजन में लिखा गया है कि 1 सम एक्स आर वाई, तो मैं जितने भी संभव डायग्राम हैं, बेटा मैं 2-3 बातें एक साथ कर रहा हूं. एक तरफ मैं कह रहा हूं कि मैं लगभग 80% क्वेश्चंस में एक डायग्राम से कहानी बना देता हूं, और एक तरफ मैं कह रहा हूं निगेट करिए. अब जब मुझे इस कंक्लूजन मिलेगा सम एक्स और वाई, तो मैं डायग्राम एक ही बनाऊंगा, लेकिन उस एक डायग्राम में मैं वो डायग्राम ढूंढूंगा जहां पर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा होगा. अगर मैं ऐसा कर पाता हूं और जहां पे एक्स और वाई का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर कंक्लूजन को काट दूंगा. अगर मैं नहीं ढूंढ पाता हूं एक भी यथासंभव डायग्राम जहां पर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन सही था और मैं गलत था. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गाइस. सेकंड वन इज ऑल एक्स आर वाई. सो अगर किसी ने कंक्लूजन में लिखा है ऑल एक्स आर वाई, तो मैं एक डायग्राम ढूंढूंगा जहां एक्स आधा निकला होगा वाई से, या एक्स पूरा वाई के बाहर होगा. दिस विल बी गुड इनफ टू निगेट द कंक्लूजन. तो मैं क्वेश्चन में उतरता ही हूं हर कंक्लूजन, लिखित कंक्लूजन को गलत प्रूफ करने के लिए, ना कि सही प्रूफ करने के लिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सिलोगिज्म के जाल में फंस जाएंगे. तीसरा, अगर मुझे कहता है कोई नो एक्स इज वाई, अगर मुझे कोई कहता है नो एक्स इज वाई, तो मैं क्या करता हूं भाई? तो मैं वो डायग्राम ढूंढता हूं जहां पर एक्स और वाई का इंटरसेक्शन हो रहा होगा. तो आई लुक एट द डायग्राम वेयर एक्स एंड वाई इंटरसेक्शन इज पॉसिबल. अगर मैं वो ढूंढ लेता हूं तो फिर मैं उस कंक्लूजन पे क्रॉस लगा दूंगा. फोर्थ, सम एक्स आर नॉट वाई एज कंक्लूजन. तो जब मुझसे कोई बोलता है सम एक्स आर नॉट वाई एज कंक्लूजन, तो मैं वो डायग्राम ढूंढता हूं जहां पर ऑल एक्स आर वाई है. बेटा कुछ बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोई भी संभव डायग्राम इसका काट नहीं हो सकता. तो जब मुझे कोई सम एक्स आर नॉट वाई एज कौन, बेटा कुछ समझ में आ रही है बात? जब मुझे कोई बोलता है सम एक्स आर नॉट वाई एज कंक्लूजन, तो मैं वो डायग्राम खोज निकालने की कोशिश करता हूं जहां पर मैं सारे के सारे एक्स को वाई के अंदर प्लेस करके दिखा सकूं. इफ आई एम एबल टू डू सो, देन आई कैन ऑल्सो निगेट दिस कंक्लूजन. मैं इस कंक्लूजन को भी काट सकता हूं. अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स देयर विल ऑलवेज बी वन एक्स विच विल नॉट बी वाई, एंड हेंस दिस कंक्लूजन इज ट्रू. दिस इज माय बेसिक स्ट्रेटजी टू हैंडल कंक्लूजंस. आते हैं सिलोगिज्म स्ट्रेटजी पे. सिंगल मोस्ट स्ट्रिक्ट डायग्राम, आइदर और सम एक्स आर नॉट वाई एज स्टेटमेंट. इसमें तो आपको समझ में आ चुका होगा
कि भाई सम एक्स आर नॉट वाई एज स्टेटमेंट में मुझे ये रूल अपना क्यों तोड़ना पड़ता है, क्योंकि सम एक्स आर नॉट वाई एज स्टेटमेंट प्रोड्यूसेस टू diagrams and hence I have to take care of both the diagrams and move further. Correct, guys? The last thing is either. So I will not talk about either at this point of time. I will start with the question and then we'll talk about the diagram. Correct? So I will talk about diagram, let's say 5 minutes from now. So let's start with it. So let's start. The one important thing is to make the diagram. जैसा मैंने कहा था, सिंगल मोस्ट स्ट्रिक्ट डायग्राम बनाने की कला आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, चलते हैं एक पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो एग्जांपल 1, statements given are, first statement is sum x or y. Statement 2 is all z are y. Statement 3, no y is k. Statement 4, all x are p. तो अब जरा पहले डायग्राम बनाने की कला पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि डायग्राम बनाया कैसे जाता है. ठीक, डायग्राम सम एक्स आर वाई, मुझे डायग्राम दिया, स्टेटमेंट बोला गया तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई बनाया. ऑल जेड आर वाई, ऑल जेड आर वाई का मतलब क्या होता है बेटा, सारा का सारा जेड वाई के अंदर है, तो मैंने ये बना दिया. अब आप लोगों में यही दुविधा शुरू हो चुकी होगी. बेटा याद याद रखिएगा, ये सिंगल मोस्ट स्ट्रिक्ट डायग्राम की कहानी क्या है. अब आप कहोगे जेड तो भाई यहां भी हो सकता था, जेड यहां भी हो सकता था, जेड यहां भी हो सकता था, जेड यहां भी हो सकता था. ये दोनों बातें गलत हैं आपकी. हमको जब तक मजबूर नहीं कर दिया गया जेड और एक्स के इंटरसेक्शन के लिए, तब तक हम जेड को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे. ये हमारे काम को बहुत स्मूथ कर देता है. सारा का सारा कंफ्यूजन इसीलिए होता है, सारा का सारा कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि हम भाई दिक्कत करते हैं. ठीक है ना, और हम जो सी के पंगे लेते हैं. नो वाई इस के, नो वाई इस के का डायग्राम क्या होगा भाई, नो वाई इस के का डायग्राम होगा ये. ठीक, अब आप कहोगे के भी एक्स के अंदर हो सकता था, के यहां घूम सकता था, के यहां घूम सकता था, बिल्कुल घूम सकता था, लेकिन जो हमको बोला नहीं कि हम वो क्यों कर रहे हैं भाई, जो स्ट्रिक्ट डायग्राम है वैसा है. अब उसने बोला ऑल एक्स आर पी, तो भाई अब मेरी मजबूरी है, मैं कितना भी समेट के चलूंगा मैं अपना पी यही बना पाऊंगा. अब वो वाई के साथ इंटरसेक्शन हो गया तो मेरी कोई गलती नहीं है. मैं जितना संभव था मैं तीसरे को बिना छुए दोनों का काम करना चाहता था. लेट्स सी. तो नाउ लेट्स रीड द कंक्लूजंस. कुछ कंक्लूजन बनाते हैं, इसके बाद हम सीधे डिफिकल्ट सवाल की तरफ चलेंगे. दिस वाज कंपैरेटिवली इजी टू मीडियम क्वेश्चन. तो कंक्लूजन 1 बोलता है, तो अब आप लोग करिएगा भाई साथ में. कंक्लूजन 1 बोलता है सम ZRX. Conclusion 2, sum KRP. Conclusion 3, all KRX, all KRX. Conclusion 4, no P is K. Conclusion 5, some X are not Y. Sorry, some X are not K. Conclusion 6, some P are X. अभी आपको जितना बताया गया आप उतना करिए. आप इंडिविजुअल मेरिट ऑफ द कंक्लूजन पर चलिए और एक एक को इंडिविजुअली सही या गलत प्रूफ करने की कोशिश करिए. इसके आगे आपको आता नहीं है, इसके आगे करने की अभी जरूरत भी नहीं है. तो आपको हर कंक्लूजन के आगे क्रॉस लगाना है. उसके बाद देखिए कितने कंक्लूजन जिंदा रह जाते हैं और कितने कंक्लूजन मर जाते हैं. स्टार्ट डूइंग इट गाइस. So let's start with the solutions. Some z are x can easily be said no.
आपका यही डायग्राम काफी है इसको ना बोलने के लिए। मैंने आपसे कहा था एक संभव डायग्राम जहां पर ना दिख रहा है वो काफी है किसी भी कंक्लूजन को इंडिविजुअली कैंसिल करने के लिए। सम के आर पी के लिए यही डायग्राम संभव है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ऑल के आर एक्स हो तो सकता है, हो सकता की बात नहीं है, हमेशा होगा वो कंक्लूजन होता है। तो ऑल के आर एक्स नहीं। नो पी इज के, नो पी इज के। अब मुझे इसको गलत प्रूफ करना है, मैं डायग्राम एक ही बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा मेरी भाषा पे पूरा ध्यान दीजिएगा। जब मैं कहता हूं सिंगल मोस्ट स्ट्रिक्ट डायग्राम तो डायग्राम में एक ही बनाऊंगा, लेकिन कौन कितना मोबाइल है वो मैं यहां से देख रहा हूं। के को यहां जाने से कोई नहीं रोक रहा है। जब उसने नो पी इज के कहा तो मैं के को घुमा के यहां ले आऊंगा और यहां बना दूंगा, लेकिन मैं डायग्राम दोबारा बनाने में टाइम खराब कर रहा हूं और मैं कंफ्यूजन का लेवल बढ़ा रहा हूं। सम एक्स आर नॉट वाई, तो क्या मैं ऑल एक्स आर के कर पाऊंगा? चलिए एक सीधा सा सवाल है। सम एक्स आर नॉट के का एक ही काट है। इफ आई कैन प्रोड्यूस अ डायग्राम विच सेज ऑल एक्स आर के, देन what? Then you have proved it to be wrong. I will not be able to, this x will not be k in all the possible diagrams. That's one way of saying it. The other way of saying it is that all x can never be in any possible diagram, even in a single diagram. I will not be able to place all x within k. That's what I said when I said some x are not y as statement over here. So if I'm able to produce the diagram where all x are y or all x are k over here, then I can surely say this is not done. So this is correct for me. Some PRX, yes, definitely some PRX. So this is about the general category. I hope it's okay. Guys, is this okay? Any problem? I hope I'm audible enough. Yeah, Amit, tell me your doubt. Tell me. फोर्थ समझा दें, ठीक, फोर्थ समझा देते हैं बेटा। नो पी इस के, मैं मैदान में उतरा किस लिए हूं? नो पी इस के को गलत प्रूफ करने के लिए। इसका मैंने कहा मैं डायग्राम एक बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी डायग्राम विजुअलाइज नहीं करता हूं। तो ये देखिए फोर्थ वाला, तो मैं के को अपने एक संभव डायग्राम में के को वाई के बाहर रहना है, इसीलिए मैं ये रखता हूं, कोई भी ये नहीं रखता है। इससे मुझे पता लगता है कि किसके साथ स्ट्रिक्ट नो नो है के और वाई के बीच में। अगर मैं ये नहीं रखूंगा तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि कहानी कहां जाएगी। तो के को इधर लेकर आऊंगा, के को यहां चिपका दूंगा, कोई रोक नहीं रहा के को यहां से, और नो पी इस के को मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। आई थिंक फोर्थ इज क्लियर गाइस। अनुराग, अभिषेक, फोर्थ इज क्लियर? फोर्थ इज क्लियर? Sachin Singh, possibility will not come in Infosys, that's for sure. So we'll not deal with possibility type, don't worry. I know that this is coming in the OLTs, but don't need to worry. You need not worry about it. Okay. Okay. First, sum ZRX, कोई पूछ रहा है फर्स्ट कंक्लूजन दोबारा बता दें। सम ZRX, तो कुछ ZX है, कुछ ZX है। ये डायग्राम अपने आप ही में दिखा रहा है ZX से बाहर है। ZX, मुझे तो एक गलती चाहिए है उसको कंक्लूजन ना साबित करने के लिए। तो ये डायग्राम अपने आप में ही संभव है इसको क्रॉस लगाने के लिए, मुझे कोई रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ओके ओके, लेट्स सी सेकंड। सम के आर पी, सम के आर पी, के को यहां पे, अब के को गलत प्रूफ करने के लिए ये डायग्राम जो खड़ा हुआ है डायग्राम वही काफी है। यहाँ पे के और पी के बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। एक डायग्राम जहां के और पी के बीच में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज गुड इनफ टू ड्रॉप सम के आर पी। और कुछ रह गया? मैं आ रहा हूं सिक्स्थ पे, सिक्स्थ के अलावा नहीं, फिफ्थ पे आ रहा हूं। आइए तो आते हैं फिफ्थ पे एक बार फिर से। सम एक्स आर नॉट वाई, तो बेटा इसका मतलब समझिएगा कुछ एक्स कभी भी वाई, कुछ एक्स कभी भी के ना हो। सम एक्स आर नॉट के, so there is some x, at least one x which is not k। बेटा एक चीज लिख लीजिए इसमें फिर से, चलिए अगर आपको थोड़ा और दिक्कत है, लिखिए बेटा सम x are not k, यही लिख लीजिए, and define this conclusion, else you will continue doing the same mistake। सम एक्स आर नॉट के एज कंक्लूजन लिख लीजिए, ये जनरल परिभाषा है। सम एक्स आर नॉट के एज कंक्लूजन, इसके आगे नीचे नोट लगा के लिखिए।
if there is at least one x, if there is at least one x which is not k, if there is at least one x, बेटा लिख रहे हो, if there is at least one x which is not k in all the possible diagrams, then I can say this conclusion to be true. If there is at least one x which is not k in all possible diagrams, then I can say this conclusion to be true. The other reverse strategy to disprove this as a conclusion is, that you think, or you can, if possibly, you can create a diagram where all x are k, where all x are k. So if you can think or make a diagram, if the diagram allows you to draw a diagram, possible diagram, where all x can be brought inside the k, then you have the full right to disprove this as a conclusion, because this one diagram is good enough to prove that there will not be at least one x which will not be k in all the possible diagrams. I hope this is clear, guys. Now let's talk about this. तो जो अभी मैंने बोला था वही मैं काम करने जा रहा हूं. तो क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारा x का सर्किल मैं k के अंदर ला दूं? क्या संभव है? नहीं. कुछ भी करूंगा, x का ये वाला हिस्सा कभी भी k के अंदर नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? वो आपको दिख रहा है, k और y के बीच में स्ट्रिक्ट नो है, तो ये हिस्सा नहीं आ पाएगा. तो I will not be able to produce the diagram which says all x are k, or if I can bring all x inside k. Hence this is right. I hope this is okay, guys. I think we should move now. Six. Some p are x, बिल्कुल सही है बेटा. Some p are x, when you read some p are x as conclusion, then this sum means sum, that means there is at least some p. अच्छा, इसको भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा. लिखिए some p are x as conclusion. What do you mean by this? Some p are x as conclusion. What do you mean by this? लिखिए, one way to handle it is that you prove that in all possible diagrams, there is at least one p. बेटा लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो फिर होगा नहीं. ठीक है ना? तो देयर इज एट लीस्ट वन पी. अगर आप लिखेंगे नहीं तो बेटा कुछ होगा नहीं. आप होशियार, अपने आप को जितना मानना चाहो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. और सिलोगिज्म में 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए कायदे से. हम बर्बादी करके उसको खराब कर रहे हैं वो अलग बात है, बट जितना इंपेरिकल आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से 5 आउट ऑफ 5 आना चाहिए. देयर इज, सो द वन वे टू हैंडल इट इज दैट इफ आई कैन प्रूव that there is at least one p which is x, that there is at least one p which is x in all possible diagrams, that there is at least one p which is x in all possible diagrams. This sum p can go to the extent of all p also. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोई सवाल गलत होंगे बहुत सारे सिर्फ इस लाइन के ना लिखने के कारण. This sum p can go to the extent of all p. लिख लिया? The reverse strategy to disprove this as a conclusion is
The reverse strategy to disprove this as a conclusion is that search for a diagram where there is no intersection of P and X. Search for a diagram where there is no intersection of P and X. Okay. Pranshu, I hope this is okay, guys. Now sum PRX. तो आप कुछ भी खेल कर लो, आपको हर P एक X है, ये हर संभव डायग्राम में यहां पर मिल रहा है, और आप कोई भी एक ऐसा डायग्राम नहीं ढूंढ पाओगे जहां पर P और X के बीच में कोई इंटरसेक्शन ना हो रहा हो. Hence this is true. Guys, shall we move on? Fine. So let's do question example 2. But we are already into medium to difficult zone, so concentrate hard. Now I will not be able to write the statements. I will draw the diagram, and I want you to write the statements, else you will not understand anything. It will be very difficult for me to write down all the statements. So the statements are, I need to concentrate on the diagram more. Statements are, लिखिए बेटा, statement number 1, sum A R B, सम ए आर बी. अच्छा 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 अच्छा, एक चीज हम भूल गए इसमें. एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी. एक कहानी इसमें भूल गए हैं हम, वो है, उस कहानी को भी अब अंजाम दे दिया जाए. नो पी इस के देखिएगा बेटा, और सम के आर पी देखिएगा. एक मिनट, बिफोर वी मूव अहेड टू एग्जांपल 2, आई नीड टू फिनिश ऑफ दिस आल्सो. So we are almost done with the almost 100% theory. So just a minute, guys. No P is K has been cancelled. Some K R P has been cancelled. Now these two are complementary statements. बेटा एक लाइन लिखिए, वर्ड लिखिएगा complementary statements. So some K R P and no K is P are complementary statements. Okay, या नो पी इस के कर दीजिए, सम पी आर के कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ भाई? इन दोनों को मिलाकर पूरी दुनिया समा जाती है. मतलब दो ही घटनाएं घटित हो सकती हैं, या तो कुछ के कुछ पी होंगे, या कोई के पी नहीं होगा. इसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती. अभी आपने क्या किया इन दोनों के साथ सलूक? आपने दोनों को कैंसिल कर दिया. बेटा मैं डायग्राम देख ही नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. मैंने तो देखा कि आपने दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट सम के आर पी और नो के इस पी को गलत प्रूफ कर दिया है. ठीक बात है, बिल्कुल सही किया. अब बैकग्राउंड में क्या स्टोरी हो रही है? कुछ लोग जो बनाते हैं मल्टीपल डायग्राम, वो 3-4 डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3 4 डायग्राम बनाएंगे. 4 डायग्राम में एक में देखेंगे कि गलत हो रहा है, उस कंक्लूजन को काट देंगे. मैं क्या करता हूं, मैं डायग्राम एक ही बनाता हूं और दिमाग में उसको सर्किल को घुमा लेता हूं और कह देता हूं कि ये कैंसिल हो गया. इतना फर्क है दोनों के बीच में, बस. सम के आर पी, नो के एस पी पे ध्यान दीजिएगा. जब सम के आर पी, किसी मैं डायग्राम में जा ही नहीं रहा हूं, जब सम के आर पी को आपने कैंसिल किया होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा. इस डायग्राम में हां, इस डायग्राम में हां, इसमें ना, और इसमें ना, जो मैंने नहीं बनाया और जो लोग बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूं. तो आपने दो जगह हां मिला होगा आपको, और दो जगह या एक जगह ना मिला होगा आपको. नो केस पी में जब आपने उसी डायग्राम को देखा होगा तो शर्तिया तौर पे आपको इनकी जगह पे नो मिला होगा और इनकी जगह पे यस मिला होगा. जहां क्रॉस वहां पे मिला था वहां पे आपको यस मिला होगा, और जहां वहां यस मिला होगा यहां पे क्रॉस मिला होगा. ये शर्तिया बात है. तो समझ में आ रही बेटा? बात पहुंच रही है आप तक कि नहीं पहुंच पा रही है? बेटा बात पहुंच रही है? ठीक ठीक, बढ़िया. तो कुछ संभव डायग्राम जो हम नहीं बनाते हैं, वहां पर इस स्टेटमेंट में आपको जवाब मिला होगा यस यस, यहाँ पे मिला होगा नो नो. उन्हीं के उल्टे वाले डायग्राम में आप देखोगे कि आपको मिला होगा यहाँ नो नो और यहाँ मिला होगा यस यस. कहानी क्या है? ये दोनों इंडिविजुअली फेल हो चुके हैं, बट ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं. मतलब जो दो स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होते हैं, इफ आई कंबाइन देम
then together they will be able to form a yes. तो इन दोनों के बीच में से मुझे आइदर करके एक यस मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में से मुझे आइदर करके एक यस मिल जाएगा, इन दोनों में से एक यस मिल जाएगा, इन दोनों में से ये से। द बिगर पिक्चर इज, अगली बार मुझे आप कह दो क्या डायग्राम बनाया था, क्या कहानी बनाई थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूं। मुझे अगली बार कोई बोल देगा सम के आर पी एंड नो के एस पी जो है वो इंडिविजुअली कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा आंख पे पट्टी बांध दो, दोनों के बीच में आइदर भिड़ा दो, आंसर आना तय। कुछ समझ में आई बात? अगर आपने सम के आर पी और नो के एस पी को इंडिविजुअली कैंसिल कर दिया है तो दोनों को बीच में आइदर भिड़ा कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या क्वेश्चन था, क्या डायग्राम बनाया था, क्या कहानी थी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड स्टोरी पीछे वाली बताने के लिए इतनी तकलीफ उठा रहा था। The other set of complementary diagrams are some x are not y and all x are y। अगर आप सोचिए किसी डायग्राम में ये दोनों कंक्लूजन के तौर पे लिखे गए थे, आपने सम एक्स आर नॉट वाई को गलत प्रूफ कर दिया, ऑल एक्स आर वाई को भी गलत प्रूफ कर दिया, तो मेरे तरफ से आपको खुली छूट है, आप दोनों के बीच में आइदर आंख पे पट्टी बांध के लगा दीजिए, चालू रहेगा। तो आई हैव गिवन यू टू सेट ऑफ एग्जांपल्स हियर एंड हियर, तो दो आपको रेडीमेड एग्जांपल दे दिए गए हमेशा के लिए। बस याद रखिएगा मेरी बात, पूरी बात याद रखना, दोनों को इंडिविजुअली गलत प्रूव होना चाहिए। वंस दोनों लोग गलत प्रूव हो चुके हैं, देन देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, आइदर इनके बीच में चालू रहेगा। सो ओवर हियर माय आंसर इज, आई विल राइट डाउन द आंसर। सो आंसर विल बी 5 and 6 follows and either of 2 or 4 follows। आया भाई लोगों? आंसर आ गया? आंसर आ गया? जल्दी बोलो बेटा, एक क्वेश्चन और कर लें, चीज पक्की हो जाए कम से कम। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, इसीलिए मैंने यहां पर आइदर मेंशन किया था, तो ये 20% ऑफ द केस है। आई एम मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। बेटा मैं अब की बार सीधे डायग्राम बनाऊंगा, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट आप लिखते रहिएगा बेटा, थोड़ा तेज लिखिएगा। सम ए आर बी, सम ए आर बी, all DRB, all DRB, some PRD, some PRD, no P is Q, no P is Q, all KRA, all KRA, some TRK, some TRK, all JRT, all JRT, all ZRQ, all ZRQ। चले कंक्लूजन लिख लेते हैं। बेटा आपने लिख लिया है मोस्ट प्रोबेबली, वरना बाद में आप मुझसे कहोगे, मुझे याद रहेंगे कि मैंने क्या स्टेटमेंट बोला था, आपको नहीं याद रहेगा। कंक्लूजन पहला, मैं सारे लिख डालता हूं, इतने मेरे दिमाग में थे बेटा, जल्दी करना, लेकिन जल्दी का टाइम रह नहीं गया। तो वन इज सम पी आर जेड, सम पी आर नॉट जेड टू सम जेड आर नॉट डी, थर्ड सम डी आर के, फोर्थ, 4th, 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 4th,
some ZRJ, fifth no Z is J, sixth all D are A, seventh all Z are D। चलिए इतने ही करते हैं, करिए। तो चलिए किया जाए। Some P are not Z, some P are not Z, करेक्ट करेक्ट। सम P are not Z, कोई भी P यहां पर Z नहीं होगा। इवन वो ऑल P are not Z कह देता, नो P is Z कह देता, तो भी ये बात सही होती। So first is correct. I hope there is no doubt about it, guys. Is it okay, guys? बोलिए। Some P are not Z, so I will definitely be able to find out one P which is not Z in all the possible diagrams, and I will never be able to make the diagram for all P or Z. Some Z are not D. Yes. Some Z are not D. Okay. Can I bring this entire Q, or can I bring this entire Q over here? Yes, I can. And hence there is a possibility for me to make a diagram for all Z R D. इधर देखो बेटा, इधर इधर यही गलत होने वाला है। ये Q का सर्किल घुमा के मैं D के अंदर ला सकता हूं, मैं Z का सर्किल भी घुमा के यहां पे ला सकता हूं, और ऑल Z R D एक बार दिखा सकता हूं। इधर देखो बेटा, यही वाला नहीं आएगा आपको आखिरी में। तो ऑल Z R T is one of the possible diagrams. Hence, this is false. Some Z are not D is wrong. Some D R K, some D R K galat. There's no point of discussion even. Some Z are J, some Z are J. नहीं गलत। नो J is Z का मैं डायग्राम बना सकता हूं। नो Z is J, अब मैं इन दोनों को इसको यहां पर ले जाऊंगा और भिड़ा दूंगा और नो Z is J को गलत साबित कर दूंगा। All D are A, all D are A, बेकार बात, there's no point in it. All Z are D, all Z are D गलत है ही, बड़े आराम से मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो all Z are D भी गलत प्रूव हो गया है। Some J are K, some J are K गलत प्रूफ दिख रहा है सामने से। आंसर तो आया है 1, लेकिन इन दोनों का आइदर चालू हो जाएगा अगर आपने ध्यान से दिया है, देखा है। अभी हाल मैंने आपको बताया था सम x आर नॉट y एंड ऑल x आर y, अगर दोनों एक साथ हैं, सम x आर y एंड ऑल x आर y अगर दोनों एक साथ हैं तो आइदर चलेगा। सो आंसर विल बी व्हाट, 1 एंड आइदर ऑफ 2 और 7 follows. करेक्ट गाइस? बता रहे हैं। तो आइदर ऑफ 2 और 7 फॉलोज। फिफ्थ वाला दोबारा बता दें बेटा। नो Z इज J, नो Z इज J को मैं यहां से बड़े आराम से इस Q के सर्किल को यहां ले जा सकता हूं और यहां पे इंटरसेक्ट कर सकता हूं और इस तरीके से हो जाएगा। 4 and 5, फोर्थ, सम Z आर J, सम Z आर J, तो देयर इज सम Z। तो बेटा ये जो डायग्राम अपने आप में, हाँ सम फोर्थ और फिफ्थ का बिल्कुल सही, मैं भूल गया, फोर्थ और फिफ्थ का आइदर चालू रहेगा एंड आइदर ऑफ 4 और 5 follows.
और कोई तो नहीं था, मैं देख लूं एक मिनट। हाँ ठीक है, तो 4 और 5 का आइदर चालू रहेगा क्योंकि दोनों इंडिविजुअली गलत प्रूव हो चुके हैं, और 1 2 और 7 का होगा और 1 सही है। आइदर विल फॉलो। कर दिया बेटा, कर दिया। 1 and either of 2 or 7 and either of 4 or 5 follows. Is this okay, guys? Is this okay? So let's keep it over here till for today and we'll continue. Okay.